Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear viewers, hopefully you would be doing fine. Before this, I have presented for you the figure of speech. I presented those topics for your ease and convenience, and I tried to present learning through fun way, you know, and I got a very good feedback from your side as well, and I hope that would play an important role for concept clarity. When I was presenting that topic, figure of speech, my vision was very simple and clear. That was clarity. I wanted to bring the clarity through fun, you know. So I presented that. Now I'm going to bring another very important topic that would really empower you. It will bring confidence in you. Believe you me, this can bring a revolutionary change in you regarding confidence, regarding your vocabulary development. So my topic is pronunciation guide, and we would see in this series of presentation that how the dictionary is consulted and how you can consult an international level dictionary. For example, you would be able to know how the words sound are formed. So for this, you can see I have written English alphabet in front of you. Let's have a look towards these sounds that we have found in the very initial scale. That is, first of all, I would read this alphabet. Then, for the junior level, I would read its pronunciation, the pronunciation of letters. Then we will go towards the ultimate target, that is pronunciation guide. तो आइए देखते हैं कि इन लेटर्स को सबसे पहले हमने कैसे पढ़ना है. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z or Z. So I have just read for you. It's very easy. You are already well aware of. So now we find the sound of this, these letters. So we say like this. We say the sounds A, B, B, C, K, D, D, E, F, G, G, H, H, I, E, J, J, K, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, sometimes we say S, T, U, V, W, X, Y, and Z or Z. So this was a pronunciation on a very junior scale, junior level. Now we are moving towards our topic, that is pronunciation guide. So we have to learn 47 sounds. 47 sounds of English alphabet will be conveyed by 47 symbols. And it is a matter of great surprise that 47 sounds are conveyed by 47 symbols, and those 47 symbols are picked from English alphabet. ये 47 आवाज़ें जो इंग्लिश की प्रोनंसिएशन के लिए लाजमी हैं, ज़रूरी हैं, ज़्यादातर ये आवाज़ें जो है कन्वे की गई हैं इंग्लिश लेटर्स के साथ. जो अल्फ़ाबेट के अंदर जो लेटर्स लिखे हैं उनके साथ ये तमाम लेटर्स इस्तेमाल होते हैं
एज अलामात के तौर पर, लेकिन कुछ लेटर्स अलामात के तौर पर इस्तेमाल नहीं होंगे। वो आई हैव एनसर्कल्ड देम, मैंने उन पर दायरा लगाया। जैसे सी एक लेटर है जो कि प्रोनाउंसिएशन के लिए यूज नहीं होगा। जब हम इंग्लिश इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट की बात करेंगे, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट की बात करेंगे, प्रोनाउंसिएशन गाइड की बात करेंगे, तो लेटर सी उसमें यूज नहीं होता। इसी तरह लेटर क्यू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में प्रोनाउंसिएशन के लिए ये यूज नहीं होता। इसी तरह लेटर एक्स ऑक्सफोर्ड एडवांस लेवल की प्रोनाउंसिएशन गाइड के लिए ये एक्स इस्तेमाल नहीं होता। तो 3 लेटर्स ऐसे हैं जिनको डिस्टिंक्शन हासिल है कि ये बतौर सिंबल इस्तेमाल नहीं होते। अलबत्ता बाकी मांदा 23 लेटर्स जो हैं वो एज ए प्रोनाउंसिएशन गाइड यूज होंगे। हम उनकी प्रोनाउंसिएशन को सीखेंगे और मैं आपको बताता चलूँ कि 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगी। और जब हम कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं तो यकीनन आपको पता है कि कॉन्सोनेंट्स वो आवाज़ें हैं जो हम अपना माउथ ऑर्गन यूज़ करके प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल वी यूज़ जॉज, टंग, लिप्स, यू नो, अपर पैलेट, लोअर पैलेट, ये जितने भी माउथ ऑर्गन को इस्तेमाल करके जब आवाज़ प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। इसके अलावा जब आवाज़ बराह रास्त हलक से बाहर आए, बगैर रुकावट के बाहर आए, माउथ ऑर्गन को इस्तेमाल किए बगैर आए, तो हम उसको वावल साउंड्स कहते हैं। वावल साउंड, यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर इसका इनिशियली फ़र्क को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि वावल लेटर्स और चीज़ है और वावल साउंड और चीज़ है। वावल लेटर्स तो आपको पता है, देयर आर 5 वावल लेटर्स, दीज आर ए, ई, आई, ओ एंड यू। दीज आर 5 वावल लेटर्स। लेकिन अब हम बात करेंगे वावल साउंड्स की। तो मैं आपको बताता चलूं 15 वावल साउंड्स हैं जो कि वी प्रोड्यूस, और इसके अलावा 8 जो है डिफ्थोंग्स हैं। डिफ्थोंग्स वो आवाज़ें हैं जो आपस में 2 आवाज़ें जब जुड़ी हुई हों उनको हम सेपरेट ना कर सकें, उनको हम आइसोलेट ना कर सकें, उनको हम सेपरेट ना कर सकें, तो दे आर कॉल्ड डिफ्थोंग्स। सो 3 तरह की आवाज़ों से हमारा वास्ता पड़ेगा। नंबर 1 कॉन्सोनेंट साउंड्स, नंबर 2 वॉवल साउंड्स एंड नंबर 3 डिफ्थोंग्स। सो इन 3 तरह की आवाज़ों के लिए हमें जैसे मैंने कहा 24 कॉन्सोनेंट साउंड हैं, 15 वॉवल साउंड्स हैं और 8 डिफ्थोंग हैं। तो टोटल मिलाकर ये 47 सिंबल्स बनती हैं और 47 साउंड्स बनती हैं। इन 47 साउंड्स को कन्वे करने के लिए हमें 47 सिंबल्स को सीखना है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बिकॉज ज़्यादातर जो सिंबल है वो हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो आपके सामने मौजूद है उससे ये अलामात जो है वो ली जाती हैं। तो इट विल नॉट बी डिफ़िकल्ट, you can easily understand it. In the next lecture I would tell you the first 5 consonant sounds and how will it be learned. So hopefully you would learn it appropriately, and you will be giving me your feedback. Thank you very much. This was Absar Ahmed on YouTube channel. Please take care of yourself and the people you know. Allah Hafiz.